Hello students, welcome back. So today we are in the sixth lecture for the chemical kinetics. In our previous lecture we discussed about the two methods for determination of rate law and the order of reaction. Today we are going to discuss the third one. The third method to determine rate law is integrated rate law method. Integrated rate law method. In this method, what we will do? We will start a reaction with some initial concentration, say A naught. We started the reaction with initial concentration A naught, and then we follow the progress of reaction by measuring some suitable physical or chemical properties, and will note down the concentration at various time intervals. हम क्या करेंगे? रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे एक नॉन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, रिएक्शन की प्रोग्रेस को फॉलो करेंगे either by measuring some suitable physical property which is directly proportional to the concentration of reactant, or by measuring some chemical property which is directly proportional to the concentration, and we will be noting down the value of concentration of A at these various intervals. ये values आपके पास आ जाएंगी, कुछ भी value आए, I write them as X, Y, Z, M. These are the values. Suppose these will be the value, numerical values of the concentration. Once we get this data, ये data आने के बाद we can verify the rate law with the help of various integrated rate law given. आपको पता है rate constant K is given by 1 by T into concentration A naught minus A for zero order reaction. K is equal to 2.303 upon T into log of A naught upon A. Similarly, for nth order, 1 upon A की power n minus 1 is equal to 1 upon A naught की power n minus 1 plus n minus 1 into KT. So we can derive various order reaction. जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की निकालेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करें तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इट विल बी 1 अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन A नॉट, n की वैल्यू 2 पुट कर दें, प्लस इट इज इक्वल टू प्लस KT. ये आ गया हमारा. यहां से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं. K विल बी इक्वल टू 1 अपॉन T, स्मॉल t है ये, 1 अपॉन T, 1 अपॉन A नॉट, A माइनस 1 अपॉन A नॉट. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका रेट ला आ जाएगा. अब हम क्या करें? ये हमारे पास टाइम की वैल्यूज मेजर की हुई हैं एक्सपेरिमेंटली. दीज आर द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एट वेरियस टाइम्स ड्यूरिंग द रिएक्शन. व्हाट वी विल डू? वी विल बी पुटिंग दीज वैल्यूज. वन वे ऑफ वेरीफाइंग द रेट ला इज दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम क्या करें? टाइम 2 मिनट, यहाँ पे 2 पुट करें, x की वैल्यू पुट करें यहाँ पे A की जगह, A की वैल्यू A नॉट की वैल्यू जो शुरू में हमने ली थी वो पुट करें और K की वैल्यू कैलकुलेट करें. देन फॉर टाइम 4 मिनट्स ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे, A नॉट की वैल्यू पुट करें जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, टाइम की वैल्यू 4 पुट करें, K की वैल्यू निकालें. और इस तरीके से हम वेरियस टाइम पे कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करके K की वैल्यू निकालें. इफ दीज वैल्यूज ऑफ K दे कम आउट टू बी कॉन्स्टेंट, then we will say that it is zero order reaction. But if the value of K does not come out, if the value of K does not come out to be same for all these values, then we will say it is not a zero order reaction. Now if this value of K for zero order reaction does not come out to be constant with these values, we will ignore this. Your reaction is not zero order. Then what we will do? We will be putting these values in the expression, integrated law expression for the first law.
if the value of k comes out to be constant for all these data or these values, it is a first order. If it doesn't, then we will go with the third order reaction. जिस किसी रिएक्शन के केस में k की वैल्यू सेम आ जाएगी इन वैल्यूज के लिए, टाइम और कंसंट्रेशन के, वो आपकी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. सो दिस इज सब्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट. वेरियस रेट लॉ की इक्वेशन में पुटअप करें और वी कैन कैलकुलेट दिस विद द हेल्प. अनदर वे ऑफ वेरीफाइंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया था, मैंने जो यहाँ पे लिखा था दोबारा से लिख देता हूँ मैं, सीरियल नंबर, योर टाइम एंड ए नोट की वैल्यू आपने शुरू में नोट कर ली थी रिएक्शन को स्टार्ट करने पे. 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, लाइक दैट वी हैव कैलकुलेटेड द रेट. एक्स, वाई, जेड और ये एम, ये वैल्यूज़ हमने नोट की. दूसरा तरीका क्या है कि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस जो हैं उनको रीअरेंज करें. जैसे जीरो ऑर्डर को हमने रिएक्शन लिखी थी 1/T इंटू ए नॉट माइनस ए. दिस वाज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ. हम इसको रीअरेंज कर देते हैं. ए इज इक्वल टू, इस टी को इधर ले जाए के टी, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी. ये हमने रीअरेंज कर दिया. नाउ इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, देन you see that it is representing a straight line. So now we will be drawing a graph between time t and concentration A, and this should be a straight line with intercept equal to a naught and slope is equal to k. स्लोप आपका माइनस के और इंटरसेप्ट आपका ए नॉट के बराबर. तो हम जो ये हमारी वैल्यूज आई डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे ए की, उनको प्लॉट करेंगे. और अगर आपका ग्राफ इस तरह का आ जाता है, ए नॉट की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू ए नॉट के बराबर आ जाती है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है विद ए नेगेटिव स्लोप, सो वी विल से दैट our reaction is zero order reaction. अगर ऐसा नहीं होता, then what we will do, we will be doing same plot with first order reaction. first order reaction के लिए हमने क्या लिखा था, k is equal to 2.303 अपॉन t इंटू लॉग, क्या होता है वहां पे, a नॉट माइनस लॉग a. अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा, यहां से हमारा t को इधर ले जाएं तो k इंटू टी अपॉन 2.303, इट इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए. लॉग ए को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए. लॉग ए विल बी इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस k upon 2.303 into t. Again, if you compare this with equation of a straight line, then y is equal to c plus mx. Again, it represent equation of a straight line. So now we will be plotting a graph. Again, we will plot a graph between time and log of a. और अगर ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आए विद ए नेगेटिव स्लोप, स्लोप आपका आएगा माइनस के अपॉन 2.303 और आपका इंटरसेप्ट आएगा लॉग ए नॉट. सो अगेन इफ वी बी सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दिस एंड इफ यू गेट दिस कर्व, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर. और अगर नहीं आता इस टाइप का ग्राफ, देन इट इज ऑल्सो नॉट फर्स्ट ऑर्डर. देन वी विल ट्राई द सेम
procedure with the equation of second order reaction. In this way we can determine the rate law for a given reaction. सेकेंड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है हमारे सिलेबस में. तो ये आप इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो इसको हम ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं. उसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं. सो दैट इज वाई दैट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल मेथड एंड दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड. सो दिस इज द थर्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द rate law and order of reaction. The fourth method for determining the rate law and order is half-life time method. What we do in this method is, जब हमने nth ऑर्डर का डेरिवेशन किया था टी हाफ का इन आवर लेक्चर नंबर 5, दैट इज द प्रीवियस लेक्चर, तो वहां हमने पाया था कि टी हाफ फॉर ए रिएक्शन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. n क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. अब हमने किसी भी रिएक्शन का n निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वी विल बी कैलकुलेटिंग T half, calculate T half with two different concentrations, with two different initial concentrations. दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हम T हाफ निकालेंगे. तो हमारा जो T हाफ आएगा, दिस इज द फर्स्ट वन विद द इनिशियल कंसंट्रेशन, it will be proportional to 1 upon a0, इसको आप यूं कह लीजिए a01 की पावर n-1. a01 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन 1. दूसरी कंसंट्रेशन के साथ निकालेंगे T 1/2 विद कंसंट्रेशन a02, a002 सारे की पावर n-1. अब अगर हम इसको, ये अगर हम मेरी इक्वेशन नंबर 1 माने हम, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इफ वी डिवाइड T 1/2 2 डिवाइडेड बाई T 1/2 1, अगर हम इनको डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को, तो हमारा क्या आ जाएगा? इट विल कम आउट टू बी a01 डिवाइडेड बाई a02 और इस सारे की पावर n-1. So by substituting the value of two initial concentration, हम इन दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दें, इन दोनों T हाफ की वैल्यू पुट कर दें, तो n-1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम मैथमेटिकली. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, भाई इस तरीके से नहीं निकालना चाहते आप, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसका लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो हमारा लॉग T हाफ 2 डिवाइडेड बाई T हाफ 1, दैट विल बी इक्वल टू n-1 into log a01 upon log upon a02, ये आ जाएगा हमारे पास. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से n-1 की वैल्यू निकाल सकते हैं. दो तरीके हैं, या तो आप इस इक्वेशन को खोल के इधर ले आइए, या आप सीधा सीधा इस सारी टर्म को डिवाइड कर दीजिए इसके नीचे, और फिर n-1 के बराबर आ जाएगी. तो n-1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा? अगर हम डिवाइड करते हैं तो log T हाफ 2 डिवाइडेड बाई T हाफ 1, और
इस सारे के नीचे हमारा आ गया log A01 डिवाइडेड बाई A02। इसको ऊपर ले जाए log m/n है। इसको सोल्व कर सकते हैं आप log की वैल्यू, और इधर 1, इसको n की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर प्लस कर दीजिए। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1 प्लस दिस, ये पूरी की पूरी टर्म दोबारा से आपकी यहाँ पे आ जाएगी नीचे। तो इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, पुट कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यूज पता है, वो पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू log की हम कैलकुलेट करके उसमें +1 करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, आप इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया डिवाइड करके इसलिए क्योंकि मेरे को ये दोनों वैल्यू भी पता है, मेरे को ये दोनों वैल्यू भी पता है, तो मुझे पूरी इसकी वैल्यू पता है log की, और इस भी log की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने सीधा इसको डिवाइड कर दिया और उसमें 1 ऐड कर दिया, बजाय इसको और ज़्यादा खोलने के इक्वेशन को। भाई log m/n का फार्मूला लगा के इसको खोल लूँ और फिर रीअरेंज करूँ। बाई अडोप्टिंग दैट मच लार्ज मेथड आई हैव सिंपली divided the two term because I will be knowing the value of this as well as this, so we can calculate very easily the rate law or the order of reaction. The fifth and the last method, that is your Ostwald isolation method. Ostwald isolation मेथड। ये मेथड भी बड़ा सिंपल है। आइसोलेशन के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल कोविड-19 पैंडेमिक में आइसोलेशन बहुत चल रहा है। द पर्सन इफेक्टेड विद कोविड-19 इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स अलग कर दिया हमने, अब उसको अलग करते हैं किसी एक कमरे में। इसी तरीके से इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, मान लीजिए ये रिएक्शन है AA BB प्लस CC टू गिव प्रोडक्ट, मान लीजिए ये रिएक्शन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट को छोड़ के किसी एक रिएक्टेंट को छोड़ देते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हम एक लिमिट में लेते हैं। मान लीजिए मैंने कंसंट्रेशन A की ली से 1 मोल पर लीटर, 1 मोल डाला इसका मैंने रिएक्शन में, एंड बोथ B एंड C दे वर टेकन इन लार्ज एक्सेस। ये हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले ली, और वो लार्ज एक्सेस क्या करेगा, व्हेन वी विल टेकिंग द अमाउंट ऑफ B एंड C इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, सो विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू टर्म्स विल नॉट चेंज। तो जब इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगी इन कंपैरिजन टू देयर इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन, तो क्या होगा, योर रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ A। सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ A के ऊपर डिपेंड करेगा रेट। तो आप अलग अलग टाइम पे रेट निकालते रहिए, कंसंट्रेशन निकाल लिए, और फिर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A निकल जाएगा आपका, बाई कन्वेंशनल जो मेथड हम लगाते हैं, रेट लॉ मेथड। ठीक है, तो इसको हमने एक्सेस में कर दिया, इसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी, इसको एक्सेस में कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू B निकल जाएगा, क्योंकि इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C। उसके बाद हमने क्या करना है, A और B को लार्ज एक्सेस में लेना है, C को लिमिटेड अमाउंट में लेना है। इन दैट केस योर रिएक्शन रेट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, एंड द चेंज इन रेट विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ कंपोनेंट C। तो इस तरीके से हम एक एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करते रहेंगे by taking the concentration of other two reactants in large excess, and will be determining the rate with respect to that particular reactant, or ultimately we will be in a position to find out the rate law. So now we have finished with methods for determination of rate law or the order of reaction. Next एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, that is amount of reactant left after n half lives
मतलब आपकी अगर n हाफ लाइफ का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन का मान लो हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट्स है, तो 20 मिनट के बाद किसी ने अमाउंट पूछा आपसे, हाउ मच अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विल लेफ्ट आफ्टर 20 मिनट्स, इट मीन्स यू हैव 2 हाफ लाइफ। 10 मिनट में आधी हाफ लाइफ होगी पहली, अगले 10 मिनट में दूसरी हाफ लाइफ होगी। तो इस तरीके से अगर n हाफ लाइफ हो जाए तो अमाउंट कितना बचेगा, तो सीधा ध्यान रखना है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ a दैट विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए अगर एक हाफ लाइफ के बाद पूछता है तो अमाउंट कितना बचेगा, आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 1 हाफ लाइफ अमाउंट विल बी a0/2। अगर 2 हाफ लाइफ के बाद पूछे तो अमाउंट विल बी a0/4, 3 के बाद a0/8, लाइक दैट। सो दिस इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन। कई बार इस पर पूछ लेते हो तो सीधा सीधा इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। इसके बाद कुछ बुक्स में कुछ एग्जाम्पल कंसीडर किए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कि आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक आध एग्जाम्पल मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ। फर्स्ट जो है, आई एम कंसिडरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अगर हम अमोनियम नाइट्राइट को डीकम्पोज करें, ये रिएक्शन मैंने पहले भी लिखी है, तो इस रिएक्शन को हीट करने पे इस रिएक्टेंट को ये टूट जाता है नाइट्रोजन गैस में +2 वाटर मॉलिक्यूल में। अब हम इस रिएक्शन को, इसकी प्रोग्रेस को कि हाउ मच रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस कैसे फॉलो कर सकते हैं, बाय मेजरिंग द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्या करेंगे, हम ये रिएक्शन कराएंगे किसी कंटेनर में और नाइट्रोजन जो इवॉल्व हो रही है वी विल बी कलेक्टिंग दैट नाइट्रोजन गैस एंड नोटिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब जैसे मान लीजिए Vt दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद जो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कितना वॉल्यूम होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ये कितना टूटा। मतलब Vt विल बी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्राइट decomposed, amount of ammonium nitrate decomposed, that is it is directly proportional to x. If x is the amount of ammonium nitrate decomposed, then it will be equal to x. And after time, infinite time means after a very very long time, क्या होगा ये, जब ये आपका सारा का सारा अमोनियम नाइट्राइट टूट गया, amount of ammonium nitrite initially taken, आपने कितना लिया था, मतलब it will be proportional to A, initial amount of your ammonium nitrite। अब हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या है, वो रेट ला क्या है, K is equal to 2.303 T log initial concentration upon concentration at time T, A upon A minus X। तो अगर इसमें हम ये वैल्यू पुट कर दें, A की वैल्यू हमने क्या निकाली 2.303 अपॉन T इज इक्वल टू लॉग, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद जो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ, जिसको हमने V इन्फिनिटी से लिखा, दैट इज दिस। A की जगह V इन्फिनिटी और X क्या था, इट वाज Vt। तो ये आपका
रेट लॉ बन जाएगा इन केस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। आप वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मेजर कीजिए एट एनी गिवन टाइम टी, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड को नोट डाउन कीजिए आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दैट विल बी इनफाइनाइट टाइम, और इसके अंदर पुट कीजिए, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल इज डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन सॉल्यूशन। आई एम टेकिंग दिस डीकम्पोजिशन इन सॉल्यूशन। N2O5 सॉल्यूशंस में भी डीकम्पोज होता है और ये गैसियस फेज में भी डीकम्पोज होता है। सो नाउ आई एम टेकिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन सॉल्यूशन। ये डीकम्पोज हुआ, इट विल गिव यू N2O4 प्लस हाफ O2। ये N2O4 टूट जाता है 2NO2 में। जब हम सॉल्यूशन में डीकम्पोजिशन करेंगे इसकी, तो ये N2O4 और NO2 दे रिमेन इन द सॉल्यूशन, ये आपके सॉल्यूशन में ही रहते हैं, और जो आपकी ऑक्सीजन गैस है दैट कम्स आउट। अगेन वी विल बी नोटिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड। ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट करेंगे, उसके वॉल्यूम को नोट करेंगे। अब मान लीजिए इफ Vt इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड आफ्टर टाइम t, then Vt will be proportional to what? How much N2O5 has decomposed? ये कितना टूटा? It will be proportional to amount of N2O5 decomposed, that is X, or after a long time V infinity, it will be proportional to amount of N2O5 initially taken, that is A। अगेन जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट ला है उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ V infinity divided by V infinity minus Vt. So this will be the modified rate law for this reaction also. Now let us consider one example of pseudo-unimolecular reaction. I am taking one example which is a pseudo-unimolecular reaction, that is acidic hydrolysis of ethyl acetate hydrolysis of ethyl acetate. It is a pseudo-unimolecular reaction. Why it is pseudo-unimolecular reaction? क्योंकि we are carrying out the hydrolysis with the help of water, and that water is present in large excess being a solvent. तो आपकी रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड बनेगा, साथ में बनेगी अल्कोहल। अब क्योंकि हमारा वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, इट विल बी प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, सो दिस रिएक्शन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली, सो इट इज ए शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को कैसे फॉलो करते हैं हम? इस रिएक्शन के फॉलो करने का तरीका ये है, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से 5 मिनट्स, 5-5 मिनट के इंटरवल पे हम इस रिएक्शन मिक्सचर में से ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विल बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ ए पिपिट। पिपिट की हेल्प से हम छोटे छोटे वॉल्यूम इसमें से बाहर निकालेंगे, मान लीजिए 5 ml, एंड वी विल बी अरेस्टिंग द रिएक्शन बाई pouring this into the ice। आइस के अंदर डाल देंगे इसको या आइस कोल्ड कर देंगे इसको, तो योर रिएक्शन विल बी अरेस्टेड। आफ्टर दैट यू विल टाइट्रेट दिस अमाउंट टेकन आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विद ए स्टैंडर्ड एसिड, बेस NaOH, क्योंकि यहाँ पे एसिड तो हमारा बन ही रहा है, तो हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे?
एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ ट्रीट करेंगे एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। अब इसमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा कैटलिस्ट भी एसिड है, दैट विल आल्सो रिएक्ट विद NaOH। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही इन दोनों रिएक्शंस को मिलाया अलोंग विद द रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट को मिलाने के बाद उसमें जैसे ही एसिड डाला, कैटलिस्ट डाला, इमीडिएटली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हम 5 ml निकाल लेंगे, उस रिएक्शन को अरेस्ट करेंगे बाय एडिंग आइस टू इट एंड देन नोटिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। मान लीजिए V0 जो है ये वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड है, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एट कैटलिस्ट। अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। मतलब दिस इज नॉट द एसिटिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एस्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को चलाते रहेंगे। मान लीजिए टाइम t पे आपने फिर से 5 ml सॉल्यूशन निकाला, रिएक्शन को अरेस्ट किया आपने विद द हेल्प ऑफ एडिंग आइस, अगेन NaOH के साथ टाइट्रेट किया, ऑफ कोर्स यूजिंग ए सुटेबल इंडिकेटर, एंड यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो ये जो Vt होगा ये क्या होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू amount of acid already present as catalyst plus the amount of acetic acid produced during the reaction। तो हमारा जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हुई X, it will be proportional to amount of acid present as catalyst plus acetic acid produced। तो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कितना हो गया, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड ये हमारा हो गया Vt माइनस V0, इसके प्रोपोर्शनल हो गया। एंड दिस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाउ मच एस्टर हैज हाइड्रोलाइज्ड, इसका कितना अमाउंट हाइड्रोलाइज्ड हो गया, दैट इज X। सो योर X विल बी प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V0। इस रिएक्शन को हम चलने देंगे एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, से आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, वी विल अगेन बी नोटिंग डाउन V इंफिनिटी। अब V इंफिनिटी क्या होगा, V इंफिनिटी बराबर होगा टोटल अमाउंट ऑफ एस्टर टेकन प्लस द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। तो V इंफिनिटी माइनस V0 अगर हम कर देंगे, जो ये कैटलिस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ इन्फिनिटी पे जो वॉल्यूम आया नेक्स्ट में, उसमें से V0 अगर माइनस कर देंगे तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल अमाउंट ऑफ द योर रिएक्टेंट टेकन। अब हम इन वैल्यूज को यूज करें रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ A इज V इंफिनिटी माइनस V0, A माइनस X, A इज V इंफिनिटी माइनस V0 माइनस Vt माइनस V0। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.303 अपॉन T इंटू लॉग V इंफिनिटी माइनस V0 डिवाइडेड बाई V इंफिनिटी माइनस Vt। So I think these are the examples of first order reaction which are sufficient to make you aware how we can modify the various rate laws for various reactions. So thank you very much. Hello everyone, if you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Happy learning.